Assalamu alaikum, dear students. In the previous class regarding linear programming, we have discussed about the introduction of linear programming, the definition of linear programming, and the structure of a linear programming problem. This linear programming, as I have mentioned in that very class, is nothing. It is actually a device which is used in decision making in order to decide the things, in order to optimize the objective function. So in order to find the solution of that objective function. So linear programming is a device which is used in decision making in business for obtaining the optimum values of the quantities subject to certain constraints when the relationships involved in the problem are linear. That's the definition of a linear programming problem that we are discussed in the previous class. Now, as I mentioned in that very class, this linear programming problem in its standard form has three parts. The structure of a linear programming problem lies here. For example, we have z is equal to 3x plus 4y subject to constraints, subject to suppose x plus y is less or equal to 4, x plus 3y is less or equal to 6, x is greater or equal to 0, y is greater or equal to 0. So this is what we call the structure of a linear programming problem. This one is here termed as the objective function. Objective function. Our main objective in case of linear, in case to solve a linear programming problem is this z is equal to 3x plus 4y. We have to optimize it, means we have to find the maximum or the minimum value of z, and that's why this function is termed as objective function. These are two restrictions जिनके अंडर हमें काम करना पड़ेगा, and that is why they are termed as structural constraints. Structural constraints. And finally we have x greater or equal to 0, y greater or equal to 0. Whatsoever is greater or equal to 0 is known as non-negative, and that is why this restriction, this construction, this constraint is termed as non-negativity constraints. Non-negativity constraints. So this is what we have. The structure of a linear programming problem has three parts. Part first is termed as objective function. Part second is termed as structural constraints. We can have only one structural constraint. We can have two structural constraints. We can have more than two structural constraints in case to solve a linear programming problem. And finally, we have non-negativity constraints. So this is the structure of a linear programming problem. Now we have to solve this linear programming problem, and in order to find the solution of a linear programming problem, we have so many methods as we have discussed earlier. We have a simplex method propounded by George B. Dantzig. We have a allocation method. We have so many methods to solve a linear programming problem. But in the syllabus of class 12th, we have a graphical method. So graphical method of solving a linear programming problem is the content that we have in this syllabus of class 12th. So we have to solve this linear programming problem using a graphical method. So here lies the graphical method of solving a linear programming problem. एक linear programming problem को हम solve कैसे करेंगे, यानी objective function को हम optimize कैसे करेंगे, इसका maximum value या minimum value कैसे निकाल पाएंगे by using the graphical method. तो क्या है ये graphical method? Here lies the algorithm for that. Here lies the structure of graphical method. So in that structure we have step number first. तो स्टेप फर्स्ट में हम क्या करेंगे इन ऑर्डर टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बाय ग्राफिकल मेथड. हियर लाइज द स्टेप फर्स्ट. तो स्टेप फर्स्ट में हमें क्या करना है, प्लॉट द ग्राफ्स ऑफ इनइक्वालिटीज, plot the graphs of inequalities describing various structural constraints. Describing various structural constraints on a graph paper. On a graph paper.
तो स्टेप फर्स्ट में जो हमारा पहला स्टेप रहेगा इन ऑर्डर टू फाइंड द सॉल्यूशन बाय ग्राफिकल मेथड में हम क्या करेंगे, प्लॉट द ग्राफ्स ऑफ इनइक्वालिटीज। अभी ऑब्जेक्टिव फंक्शन का काम नहीं है, नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट को हमें प्लॉट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, बिकॉज x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0, x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0 मींस अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, y इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0 मींस अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस, and that includes the first quadrant. So non-negativity constraints directly represent the first quadrant. As it represents the first quadrant, we need not to plot it, we need not to find the graph of this thing. So only we have to plot these structural constraints. इन स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट्स के ग्राफ्स को प्लॉट कर दो ऑन अ ग्राफ पेपर। ये ग्राफ पेपर पे करना पड़ेगा, आसान रहेगा। आपके आंसर बुक के लास्ट पेज, लास्ट वाला पेज जो होता है ग्राफ पेपर ही होता है, तो अगर इसकी डायग्राम आपको चाहिए, इसका ग्राफ चाहिए, तो वो आप उसी पेपर पे, उसी शीट पे बना दोगे। सो क्या करना पड़ेगा, इन स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट्स को हम पहले प्लॉट करेंगे ऑन अ ग्राफ पेपर। अगर हम पहले स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट की बात करेंगे, ये है जिगर x plus y is less or equal to 4. So this is a linear, not an equation, but a linear in equation. So we have to plot this linear in equation. You must have studied in class 11th how to plot a linear in equation. I am repeating it again. So कैसे एक लीनियर इन इक्वेशन को हम प्लॉट करेंगे, आपने प्लॉट करना है x plus y is less or equal to 4. तो इस चीज को प्लॉट कैसे करेंगे, जैसे हम जानते हैं अगर हमारे पास होता x plus y is equal to 4, तो ये एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है और ये एक लीनियर इन इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को जब हम प्लॉट करते हैं, ये देती है एक स्ट्रेट लाइन, राइट। जब एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को प्लॉट करेंगे, सो दैट विल गिव अस अ स्ट्रेट लाइन। लेकिन अगर हम लीनियर इन इक्वेशन को प्लॉट करेंगे, ये हमें स्ट्रेट लाइन नहीं बल्कि दे देगा एक रीजन। अब ये रीजन हमें कैसे मिलेगा, ये रीजन कहां पे होगा, तो ये डिसाइड कौन करेगा। सबसे पहले हम कंसिडर करेंगे लाइन x plus y is equal to 4. दिस लाइन विल पास थ्रू द पॉइंट्स। हम उन पॉइंट्स को पहले प्लॉट करेंगे ऑन अ ग्राफ पेपर, उन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करेंगे और हमें मिलेगी एक स्ट्रेट लाइन। अब बात छिड़ रही है लीनियर इनइक्वेशन की। तो लीनियर इनइक्वेशन जो है हमें एक स्ट्रेट लाइन प्रोवाइड नहीं करेगा, प्रोवाइड करेगा एक रीजन। अब ये रीजन कहां पे होगा, ये रीजन इस लाइन के नीचे होगा, बिलो द लाइन होगा, या ये रीजन इस लाइन के अबो होगा, यानी अबो द लाइन होगा। तो ये डिसाइड कौन करेगा, डिसाइड करेगा ऑरिजिन, जिसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 0,0। सो आपने क्या करना है, x का वैल्यू पुट करना है 0, y का वैल्यू पुट करना है 0। सो 0 plus 0 will give us 0 is less or equal to 4. 0 is less or equal to 4. Is that true or false? That's true. So that is true, means origin satisfies this region. When origin satisfies the origin lies in the region, and when origin lies in the region must be below the line, as we are talking about only first quadrant. जब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करेंगे, तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट। आपकी लाइन सपोज ऐसे आ रही है, जब ये लाइन ऐसे आ रही है, जो ये बाउंड्री जो रीजन की मिल रही है वो ऐसे आ रही है। सो बाउंड्री पे हम अब हमें डिसाइड करना है कि ये रीजन इस लाइन के नीचे होगा या ये रीजन इस लाइन के अबो होगा। तो कौन बताएगा, ओरिजिन। ओरिजिन को सेटिस्फाई कर दो, ओरिजिन को यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो। x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0, 0 plus 0 is 0, less or equal to 4, 0 is less or equal to 4, origin satisfies the region. When origin satisfies the region, the origin lies in the region. When origin lies in the region, obviously the region is below the line. When it is below the line, obviously origin lies in the region, right? अगर ये होता है यहां पे x plus y is greater or equal to 4, राइट, तब आप ओरिजिन को यहां पे x का वैल्यू पुट कर दो 0, y का वैल्यू पुट कर दो 0, 0 plus 0 is 0 is greater or equal to 4. 0 is greater or equal to 4 is not true, that's false obviously. means ये रीजन जो है ये इस लाइन के नीचे नहीं आएगा। क्यों? because origin is not satisfied in the region. When origin is not satisfied in the region, origin does not lie in the region. When origin does not lie in the region would be above the line, तो रीजन ऐसे आएगा। तो इस तरह हम
लोकेट करेंगे इन रीजन्स को सेटिस्फाइड बाय द स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट्स। जो स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट्स आपके पास अवेलेबल होंगे उनको प्लॉट करके हमें रीजन्स मिलेंगे। तो वही रीजन्स अब वो लाइन के नीचे होंगे, बाउंड्री के नीचे होंगे या बाउंड्री के ऊपर होंगे, डिसाइड करेगा ऑरिजिन। सो आपने क्या करना है, पहले स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट को प्लॉट करना है जस्ट लाइक दिस। इसी तरह दूसरी स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट को भी प्लॉट करना पड़ेगा लाइक दिस। और जितने सारे स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट उसमें होंगे आप उन सारे स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट्स को प्लॉट करोगे ऑन अ ग्राफ पेपर। तो दैट कंप्लीट्स आवर फर्स्ट स्टेप। नाउ लाइज द सेकंड स्टेप। तो सेकंड स्टेप क्या कह रहा है? जो ही हमने सारे स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट्स को प्लॉट किया है ऑन अ ग्राफ पेपर, इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा? स्टेप सेकंड लाइज हियर, फाइंड द रीजन in the first quadrant. Find the region in the first quadrant. Why in first quadrant? Because of non-negativity constraints. Because of non-negativity constraints. फाइंड द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब एक रीजन को ढूंढना है, एक रीजन को लोकेट करना है, लेकिन कौन से क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही क्यों? इसके बाहर हमें जाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज ऑफ नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट, बिकॉज x is greater or equal to 0, y is greater or equal to 0, and that is obviously the first quadrant. So find the region in the first quadrant because of non negativity constraints, which is in common to all the regions, plotted in step first. Which is in common to all the regions plotted in step first. आपने क्या करना है? एक ऐसा रीजन लोकेट करना है, एक ऐसा रीजन फाइंड करना है। कौन से क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, बिकॉज ऑफ नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट्स। जो क्या होगा? विच इज इन कॉमन टू ऑल द रीजन्स प्लॉटेड इन स्टेप फर्स्ट। जितने सारे रीजन्स आपने प्लॉट किए हैं स्टेप फर्स्ट में, उन सारे रीजन्स का एक कॉमन रीजन आपको निकालना है। एंड दिस रीजन इज हियर नोन एज, this region is here known as feasible region. This region is here known as feasible region. इस रीजन का नाम यहां पे पड़ता है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में feasible region। तो feasible region अब कौन सा रीजन हो गया? फॉर एग्जाम्पल आपने स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट को जो प्लॉट किया है, ये आपका सपोज फर्स्ट क्वाड्रेंट आ रहा है। पहली लाइन सपोज आपको ऐसे आ रही है, राइट? दूसरी लाइन सपोज आपको ऐसे आ रही है। सपोज ये वाला रीजन बिलो द लाइन है और ये वाला रीजन भी बिलो द लाइन है। तो बिलो द लाइन इसका मतलब ये वाला रीजन जो है, ये वाला रीजन आपका कॉमन रीजन आ रहा है। सपोज नेम दैट ओ ए बी सी। तो ये कॉमन रीजन ओ ए बी सी जो है, जिसको हमने शेड यहां पे कर रखी है, ये वाला रीजन हमें दे देगा, इसका नाम यहां पे पड़ता है फीजिबल रीजन। सो फीजिबल रीजन अब कौन सा रीजन हो गया? डेफिनेशन भी पूछी जाती है। मैंने इनका पीडीएफ जो है ऑलरेडी ग्रुप में मैंने वो शेयर कर रखा है, वो सारी डेफिनेशंस आप देख लोगे। सो फीजिबल रीजन अब कौन सा रीजन हो गया? ये है सेट ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। द सेट ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट whose coordinates satisfy all the structural constraints of a linear programming problem. एक ऐसे पॉइंट्स का सेट, इसमें वो पॉइंट्स आते हैं इस फीजिबल रीजन में, वो सारे पॉइंट्स आते हैं जिन सारे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं सेटिस्फाई करेंगे इस इनइक्वेशन को भी और सेटिस्फाई करेंगे इस इनइक्वेशन को भी। मतलब अब फीजिबल रीजन की डेफिनेशन क्या होगी? द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट whose coordinates
satisfy all the structural constraints of a given linear programming problem is called a feasible region. ये मैंने वहां पे पीडीएफ में सेट भी कर रखा है, अब ऐसे भी लिख सकते हो. feasible region की डेफिनेशन पूछी जाती है एग्जाम्स में, 1 नंबर या 2 नंबर की. सो क्या हो गया feasible region? The set of all those points in the first quadrant, the set of all those points in the first quadrant whose coordinates satisfy all the structural constraints of a given linear programming problem is called a feasible region. तो आपको मिला है यहां पे feasible region, सपोज O A B C, ये आपका feasible region है. आपने इस feasible region को शेड करनी है. इसके बाद आपका क्या चाहिए? locate the extreme points. Locate the extreme points जिन्हें हम that is corner points, जिनको हम corner points भी कहते हैं. Locate the extreme points that is corner points of the feasible region. Of the feasible region. अब आपने क्या करना है नेक्स्ट? इस feasible region के corner points, इस feasible region के extreme points, इस feasible region के vertices को आपने locate करना है. इसका पहला vertex यहां पे है O, जिसके coordinates obviously होंगे 0,0. इसका दूसरा vertex यहां पे है A, जिसके coordinate suppose हैं 0,2. इसका तीसरा vertex यहां पे B है, suppose जिसके coordinates हैं 3,1 और सपोज ये आपका C कोऑर्डिनेट है, सपोज जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 4,0. मैं सपोज कर रहा हूं ये. तो आपको मिले हैं कॉर्नर पॉइंट्स O ऑफ 0,0, A ऑफ 0,2, B ऑफ 3,1 एंड C ऑफ 4,0. ये आपको मिले हैं फीजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स. तो कॉर्नर पॉइंट्स जब आपको मिले हैं, इसके बाद आपने क्या करना है? नाउ इससे पहले ये फीजिबल रीजन जो है, ये फीजिबल रीजन दो तरह का हो सकता है. या हो सकता है बाउंडेड फीजिबल रीजन, बाउंडेड फीजिबल रीजन, या हो सकता है अनबाउंडेड फीजिबल रीजन. या हो सकता है बाउंडेड फीजिबल रीजन, या हो सकता है अनबाउंडेड फीजिबल रीजन. बाउंडेड फीजिबल रीजन मींस इट इज बाउंडेड ऑल साइड्स बाय लाइन सेगमेंट्स. ये बाउंडेड है, यहां पे भी लाइन सेगमेंट 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 है. इट इज एनक्लोज्ड बाय द लाइन सेगमेंट्स, इट इज एनक्लोज्ड बाय द बाउंड्री. सो दैट इज व्हाई दिस टर्म, दिस फीजिबल रीजन इज नोन एज बाउंडेड फीजिबल रीजन. किसी केस में ये फीजिबल रीजन ऐसे आ सकता है, सपोज ऐसे आ गया ये फीजिबल रीजन, आपने इसे शेड कर रखी है, ये ऊपर तक जा रहा है, मींस इट इज बाउंडेड on this side, bounded on this side, bounded on this side, but it is unbounded on this side. Means at that time this feasible region is termed as unbounded feasible region. फिर हम इस लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की सॉल्यूशन जब करेंगे तो बाउंडेड के लिए जो हम यूजुअल प्रोसेस करेंगे, लेकिन अनबाउंडेड फीजिबल रीजन के लिए एक एक्स्ट्रा स्टेप करना पड़ता है. अनबाउंडेड फीजिबल रीजन के लिए वो हम लेटर ऑन डिस्कस कर लेंगे जब हम कंडीशन पढ़ेंगे किसके लिए, अनबाउंडेड फीजिबल रीजन के लिए, कि अनबाउंडेड फीजिबल रीजन में हमें फिर सोल्यूशन कैसे मिलती है. सो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेंगे ये बाउंडेड फीजिबल रीजन. तो आपका फीजिबल रीजन सपोज बाउंडेड आ रहा है, आपने इस बाउंडेड फीजिबल रीजन के एक्सट्रीम पॉइंट्स को लोकेट कर रखा है, इनके कोऑर्डिनेट्स को लोकेट कर रखा है. फिर आपने क्या करना है? स्टेप नंबर 3. स्टेप नंबर 3 में आपने क्या करना है? ये सारे कॉर्नर पॉइंट्स जो है, एक्सट्रीम पॉइंट्स जो है, इन सारे पॉइंट्स को सब्स्टिट्यूट करना है ऑब्जेक्टिव फंक्शन में. यानी यहां पे x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट कर दो, z का वैल्यू मिलेगा. x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 2 पुट कर दो, यहां पे z का वैल्यू मिलेगा. x इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 1, यहां पे पुट कर दो, z का वैल्यू मिलेगा. x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 0, यहां पे पुट कर दो, z का वैल्यू मिलेगा. मतलब हमें अब लास्ट स्टेप में हमें क्या करना पड़ेगा? फाइंड द वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन कॉरस्पॉन्डिंग टू ईच कॉर्नर पॉइंट. फाइंड द वैल्यू ऑफ objective function
find the value of objective function corresponding to each corner point. Corresponding to each corner point. Find the value of objective function corresponding to each corner point. Each corner point पे आप objective function का value निकाल दो. फिर the points which optimizes the given linear programming problem, which optimizes the given objective function, is the required solution. Yes dear, क्या करना पड़ेगा? इन सारे पॉइंट्स को सबस्टिट्यूट कर दो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में. जब इन सारे पॉइंट्स को हम सबस्टिट्यूट करेंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, तो हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन के बहुत सारे वैल्यूज मिलेंगे. सबसे पहला वैल्यू जो मिलेगा z इज इक्वल टू ओरिजिन, ये वाला पॉइंट सबस्टिट्यूट कर दो तो x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0 मींस z इज इक्वल टू 0. जब दूसरा पॉइंट यहां पे a सबस्टिट्यूट करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग में, उसके कॉरेस्पॉन्ड में z का वैल्यू क्या आएगा? x का वैल्यू 0 पुट कर दो, y का वैल्यू 2 पुट कर दो, तो यहां पे 3 0s are 0, 4 2s are 8 मींस z का वैल्यू 8 आ रहा है. सिमिलरली तीसरा पॉइंट सबस्टिट्यूट कर दो. जब x का वैल्यू यहां पे 3 पुट करेंगे, y का वैल्यू यहां पे 1 पुट करेंगे, 3 3s are 9, 9 प्लस 4 कितने हो गए? 13. सो z का वैल्यू आपको यहां पे 13 मिल रहा है, राइट. फाइनली जब आप लास्ट पॉइंट सबस्टिट्यूट करोगे 4,0, x का वैल्यू यहां पे 4 कर दो, y का वैल्यू यहां पे 0 कर दो, तो 3 4s are z इज इक्वल टू 12 आपका वैल्यू आ रहा है. सो कॉरेस्पॉन्डिंग टू ईच कॉर्नर पॉइंट यू हैव द वैल्यू ऑफ z. नाउ ये गिवन लीनियर प्रोग्रामिंग में आपसे पूछा गया होगा डेफिनेटली कि आपने सपोज मैक्सिमम वैल्यू निकालना है या आपने सपोज मिनिमम वैल्यू निकालना है. तो मैक्सिमम मतलब सबसे बड़ा वैल्यू जो इसमें है कौन सा है? 13. सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू 13. ये 13 कहां पे आ रहा है? एट द कॉर्नर पॉइंट 3,1. एट द कॉर्नर पॉइंट 3,1 मींस व्हेन x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 1. सो मिल गई सॉल्यूशन. अब आप अगर आपको मिनिमम चाहिए तो मिनिमम कहां पे मिल रहा है? 0 मिल रहा है मिनिमम. ये कहां पे? ओरिजिन पे. सो द मिनिमम वैल्यू ऑफ 0 इज एट ओरिजिन 0,0 मींस व्हेन x इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0. सो इन दिस वे you can find the solution of a given linear programming problem by graphical method, right? So कैसे करेंगे graphical method से linear programming problem की solution? मैं फिर से थोड़ा बहुत दोहरा रहा हूं. सबसे पहले आपके पास स्ट्रक्चर दिया होगा लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का, आपके पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगी, आपके पास स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट होंगे, आपके पास नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट होंगे, या जनरल में कोई ऐसी कंडीशन होगी जिसको पहले हम, अगर कंडीशन होगी तो उसको पहले हम स्ट्रक्चर दे देंगे, दे रखा होगा वहां पे. सो पहले उस कंडीशन को हम ट्रांसफॉर्म करेंगे स्ट्रक्चर में. स्ट्रक्चर ऑफ गिवन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है, फिर इसे सॉल्व करेंगे. तो सॉल्व करने के लिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन के साथ अभी कुछ नहीं करना है. नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट ऑब्वियसली ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट को प्लॉट करेंगे. एक स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं. आपके सिलेबस में तकरीबन 3 तक ये जो है स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट हो सकते हैं. तो सबसे पहले सारे स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट को प्लॉट करेंगे ऑन अ ग्राफ पेपर, जो हमें दे देंगे रेस्पेक्टिव रीजन्स. फिर स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे? उन सारे रीजन्स का निकालेंगे एक कॉमन रीजन. एक कॉमन रीजन निकालेंगे उन सारे रीजन्स का, और उस कॉमन रीजन का नाम पड़ता है यहां पे फीजिबल रीजन. अब फीजिबल रीजन की डेफिनेशन अभी मैंने डिस्कस कर दी. इसमें वो पॉइंट्स होंगे, वो सारे पॉइंट्स होंगे जिन सारे पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट्स सारे स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई कर रहे होते. तो मिलेगा आपका फीजिबल रीजन.
फीजिबल रीजन मिलने के बाद आपने क्या करना है, उस फीजिबल रीजन के एक्सट्रीम पॉइंट्स यानी कॉर्नर पॉइंट्स को लोकेट कर देना। मैंने बता दिया कि फीजिबल रीजन आपका बाउंडेड भी हो सकता है, फीजिबल रीजन आपका अनबाउंडेड भी हो सकता है। तो बाउंडेड है या अनबाउंडेड है, मेथड तो बिल्कुल सेम है, लेकिन अगर अनबाउंडेड है तो लास्ट में एक और कंडीशन यूज करनी पड़ती है, वो हम नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस कर लेंगे क्या है वो कंडीशन। सो अगर आपका फीजिबल रीजन बाउंडेड है तो आपको बाउंडेड फीजिबल रीजन के एक्सट्रीम पॉइंट्स को निकालना है, उन एक्सट्रीम पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स को लोकेट करना है, फिर उन सारे एक्सट्रीम पॉइंट्स, उन कॉर्नर पॉइंट्स को सबस्टिट्यूट करना है ऑब्जेक्टिव फंक्शन में। जो ही आपने वो सारे कॉर्नर पॉइंट्स ऑब्जेक्टिव फंक्शन में सबस्टिट्यूट कर रखे तो आपको मिलेंगे corresponding to each corner point you would have the different value of z। अब अगर आपको मैक्सिमम चाहिए तो ढूंढो उनमें से सबसे बड़ा कौन है, अगर आपको मिनिमम चाहिए तो लोकेट कर दो इनमें सबसे छोटा कौन है। सो अगर सबसे बड़ा चाहिए, मैक्सिमम चाहिए तो 13 है एट द कॉर्नर पॉइंट 3,1 मींस व्हेन x = 3 y = 1। और अगर आपको सबसे छोटा वैल्यू चाहिए, मिनिमम चाहिए, तो दैट इज 0 एट द कॉर्नर पॉइंट 0,0 मींस व्हेन x = 0 एंड y = 0। So in this way, we can find the solution of a linear programming problem by graphical method. And इस linear programming problem by graphical method को हम कैसे सॉल्व करेंगे ये हम डिस्कस कर लेंगे एग्जाम्पल के थ्रू, उससे सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। बट दैट मस्ट बी डन इन द नेक्स्ट क्लास, जो हम अगली क्लास में कर लेंगे एग्जाम्पल। लेकिन बिफोर दैट, अगर आपका फीजिबल रीजन जो है, फीजिबल रीजन जो आपका है, सपोज ये आपका सपोज फीजिबल रीजन आ रहा है जिसका नाम आपने दिया है O A B C। Obviously this feasible region is bounded because it is bounded all through by line segments। Now ये bounded feasible region, एक तो मैंने कहा कि feasible region के दो टाइप्स हैं, एक है bounded feasible region, दूसरा है unbounded feasible region। अब मैं कह रहा हूं ये bounded feasible region जो है इसके भी दो टाइप्स हो सकते हैं। दो टाइप्स क्या है, एक को हम कहते हैं कन्वेक्स सेट या कन्वेक्स रीजन, और दूसरे को हम कहेंगे नॉट कन्वेक्स। कनकेव नहीं कहेंगे, नॉट कन्वेक्स कहेंगे। तो अब ये कन्वेक्स सेट या कन्वेक्स रीजन क्या है? एक रीजन को हम, अगर आपके पास एक रीजन है, बाउंडेड फीजिबल रीजन है, उस रीजन को हम तब कहेंगे कि ये कन्वेक्स है अगर इस रीजन में कहीं पे भी हम दो पॉइंट्स ले रहे हैं, उन दो पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करेंगे बाय लाइन सेगमेंट, बाय स्ट्रेट लाइन सेगमेंट, उस लाइन सेगमेंट के सारे पॉइंट्स इसी रीजन में लाई करने चाहिए। अगर लाइन सेगमेंट के सारे पॉइंट्स इसी रीजन में लाई कर रहे हैं तो रीजन इज टर्म्ड एज कन्वेक्स रीजन और कन्वेक्स सेट। सर्कल ले लो, एक पॉइंट यहां पे ले लो, सपोज एक पॉइंट यहां पे ले लो, कहीं पे भी ले लो दो पॉइंट्स, इन दो पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर दो बाय स्ट्रेट लाइन सेगमेंट। इस स्ट्रेट लाइन सेगमेंट का हर कोई पॉइंट इसी रीजन में लाई कर रहा है, सो सर्कल अगेन इज अ कन्वेक्स सेट, इट्स अगेन अ कन्वेक्स रीजन। ट्रायंगल ले लो, एक पॉइंट यहां पे ले लो, एक पॉइंट यहां पे ले लो, लाइन सेगमेंट से ज्वाइन कर दो, लाइन सेगमेंट का हर कोई पॉइंट रीजन में ही आ रहा है, तो दिस इज अगेन अ कन्वेक्स रीजन। तो ये भी कन्वेक्स रीजन है, ये भी कन्वेक्स रीजन है, ये भी कन्वेक्स रीजन है। क्वाड्रिलेटरल, सर्कल, ट्रायंगल, पेंटागन ले लो, हेक्सागन ले लो, हेप्टागन ले लो, ऑक्टागन ले लो, जो भी सारे ये पॉलिनोमियल्स है, सॉरी पॉलीगन्स हैं, ये क्या रिप्रेजेंट करेंगे? ये रिप्रेजेंट करेंगे कन्वेक्स सेट्स। अब फिर नॉट कन्वेक्स कौन सा हो गया? सपोज अगर आपके पास फीजिबल रीजन ऐसे आ रहा है, कोई रीजन आपके पास जस्ट लाइक दिस है, एक पॉइंट आप यहां पे चूज कर दो, एक पॉइंट आप यहां पे चूज कर दो, दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो बाय लाइन सेगमेंट, राइट? तो क्या इस लाइन सेगमेंट का हर कोई पॉइंट इस रीजन में आ रहा है? नहीं, क्योंकि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जितने सारे पॉइंट्स है ये रीजन में इंक्लूड नहीं हो रहे हैं। इसका मतलब लाइन सेगमेंट का हर कोई पॉइंट रीजन में इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, रीजन में इंक्लूड नहीं हो रहा है, सो रीजन इज नॉट कन्वेक्स, मींस एट दैट टाइम इट इज टर्म्ड एज नॉट कन्वेक्स सेट और नॉट कन्वेक्स रीजन। So that's all about the graphical method of solving a linear programming problem. How to solve a linear programming problem by graphical method, graphically, that we have discussed. Now regarding that we must have some examples. So
we will discuss an example regarding the graphical method of solving a linear programming problem in the next class. And till then, Allah Hafiz.